کیا عید میلاد النبی منانا محبت رسول ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ محبت رسول تک بات کیسے آئی؟ پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں، جب ان سے پوچھا گیا، ان سے کا مطلب ہمارے نادان مسلمان بھائی ہیں، سب تھوڑا راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم عید میلاد النبی مناتے ہو، اس کا جلوس نکالتے ہو، سال میں ہر مرتبہ 12 ربیع الاول کو بڑا اہتمام کرتے ہو، تو کہتے ہیں دلیل نہیں ہے تو کیا ہوا، کیا محبت میں بھی نہیں منا سکتے؟ ہم ہمارے رسول سے، آقا سے، محمد سے، نبی سے ہم کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اگر دلیل نہیں بھی تو کیا محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اتنا سا نذرانہ ہر سال میں ایک مرتبہ آقا کی شان میں اور ان کی خدمت میں پیش کریں؟ تو جب دلیل نہیں ملتی ہے محبت لے آتے ہیں، جبکہ ہم کو محبت کا بھی اصول جان لینا چاہیے کہ محبت کا بھی اصول ہوتا ہے، محبت کا بھی قاعدہ ہوتا ہے۔ محبت کے نام پر ہم یہ جو سال میں ایک مرتبہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ عید میلاد النبی کا جشن منا کر، جلوس کر کے، وغیرہ وغیرہ کر کے خوش اس لیے ہے کہ یہ چیز رواج کے طور پر ہمارے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ ایک چیز ایک سال میں ایک مرتبہ محبت کے نام پر کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، بنا مطلب وہ سل کے بنتا ہے نا، ایسا بنا ہوا اور بنا ہوا ہے کہ ہم کو یہ چیز صحیح لگتی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدرس ڈے سال میں ایک مرتبہ، ماں کی عزت کرنا، احترام کرنا، گفٹ دینا اور وغیرہ دعوت کرنا، پورا سال ماں کو انسان بھول جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ فادرس ڈے، ٹیچرس ڈے، اور ڈے کے نام پر آج تو کئی ڈیز آ گئے ہیں، یہ چیز ہمارے رگ رگ میں بس گئی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ محبت اسی کا نام ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کچھ ان کے لیے یونیک کیا جائے اور بقیہ پورا سال ان کے سارے کاموں کو، ان کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا جائے اور ان کے حقوق کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ کیا یہ محبت ہے؟ حقیقت میں بتائیے۔ میں ہی بتاؤں گا کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں کا ایک دن مدرس ڈے بناتا ہے اور خوب اس میں دعوت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، کپڑے پہناتا ہے اور محبت کا ایک دم بھرتا ہے، پھر سال بھر ماں کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے، تو کیا محبت ہے؟ نہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اصل محبت ہے حقوق کو ادا کرنا، اصل محبت ہے حقوق کی ادائیگی کرنا، ذمہ داری کو پورا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہم ان کے نام پر جلوس منائیں یا عید میلاد النبی منائیں، بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کریں، ورنہ حقوق کو ادا کیے بغیر کوئی بھی محبت کا کیسے بھی دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ شریعت کی روشنی میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر محبت ہے کسی کو نبی سے تو وہ نبی کے حقوق ادا کرے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محبت کرنا بھی عبادت میں شامل ہے، محبت کرنا عبادت میں شامل۔ اب یہاں سے پوائنٹ سمجھتے جانا۔ محبت کرنا عبادت میں شامل ہے، یعنی یہ محبت کرنا دین ہے، محبت کرنا شریعت ہے، شریعت سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ جب محبت کرنا عبادت ہے، محبت کرنا دین ہے، محبت کرنا اسلام ہے، تو محبت کرنا ہم سب کا ایمان بن گیا، ہمارے ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ بن گیا کہ ہم محبت کریں۔ جب ایمان کا حصہ بن گیا، دین کا حصہ بن گیا، اسلام کا حصہ بن گیا، تو اسلام تو مکمل ہے، دین تو مکمل ہے، ایمان کی تکمیل تو ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور اس دین کو بطور نعمت تم پر میں نے نچھاور کر دیے اور اس دین سے میں مکمل راضی ہو گیا۔ پتا کیا چلا کہ اگر محبت ہے تو وہ دین کے اندر ہے، دین سے باہر کی چیز نہیں ہے۔
जब दीन के अंदर है मोहब्बत तो दीन की रोशनी में हमें मोहब्बत करना है, सिर्फ दीन की रोशनी में। दीन से हटकर, इस्लाम से हटकर हम मोहब्बत हरगिज नहीं कर सकते। क्यों? सिर्फ दीन की रोशनी में ही हम मोहब्बत करें। क्या इस बात की दलील है कि हम दीन से हटकर मोहब्बत नहीं कर सकते? हाँ है, दलील है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बाकायदा फरमाया है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी सुनिए, हमने आपको पूरी इंसानियत की तरह खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है। और इस आयत के आगे के टुकड़े में अल्लाह ने फरमाया, इसलिए हमने ये आपको हुदा दिया है ताकि दुनिया वाले आप पर ईमान लाए, ताकि दुनिया वाले आपको माने, व तुअज़्ज़िरूहु, आपकी मदद करे, व तुअक्किरूहु, आपसे मोहब्बत करे, आपकी ताज़ीम करे, आपका एहतराम करे। पता क्या चला? मोहब्बत करना दीन में शामिल है। दीन से हटकर अगर मोहब्बत होती है तो वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वही है जो दीन की रोशनी में होती है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया है। अगर हम ये देखें मोहब्बत दीन है तो फिर मोहब्बत दीन में कैसा करना, इसका भी तो जवाब होगा शायद। जब मोहब्बत करना दीन में है तो कैसे करना, इसका भी जवाब होगा ना। दीन अधूरा थोड़ी है। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सुन्नत क्या है बताइए? इब्ने तैमिया और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल हुसैमीन, इब्ने बाज रहमहुल्लाह, मुकम्मल जितने भी हमारे असलाफ, अव्वलीन देखिए, आखरीन देखिए, आजकल के दौर के जो आज से 10-12 साल, 20-25 साल पहले गुजर गए हैं, सब ने यही कहा है कि सालेह अल फौजान की किताब भी मैंने इस सिलसिले में पढ़ी है, सब ने कहा है सुन्नत जो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना, मन अहब्ब सुन्नती, जो सुन्नत कहा है ना, इसका सीधा मतलब इस्लाम है। यानी मेरे पहुंचाए हुए इस्लाम के मुताबिक जो चले फकद अहब्बनी, वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है। देखिए यानी मोहब्बत करना दीन है, दीन से हटकर मोहब्बत नहीं कर सकते। जब दीन से हटकर मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत करना दीन है। खुद नबी ने फरमाया है कि जो मेरे पहुंचाए हुए इस्लाम के मुताबिक अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है, और जो इस तरीके से मुझसे मोहब्बत करेगा काना मैया फिल जन्नह, वो जन्नत में होगा। इस हदीस को तराजू बनाकर हम अपने आप को तोलने की अगर कोशिश करेंगे तो हकीकी मुहिब्बे रसूल, हकीकी रसूल से मोहब्बत करने वाला वही है जो इस्लाम पर चलता है, दीन पर चलता है, शरीयत पर चलता है, सुन्नत के मुताबिक चलता है, सुन्नत को सुन्नत समझ के चलता है, गैर सुन्नत को, मुखालिफे सुन्नत को, बिदअत को, गैर शरीयत को, शरीयत के अलावा चीज को सुन्नत समझकर नहीं, बल्कि सुन्नत को सुन्नत समझकर जो चलता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। यहाँ तो एक बात साबित हो गई कि मोहब्बत करना दीन है। अल्लाह ने भी फरमाया, रसूल ने भी फरमाया, और मोहब्बत जब दीन है तो दीन से हटकर तरीके से हम मोहब्बत नहीं कर सकते। तो हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुल नबी मनाना भी बताया होगा ना। अगर नहीं बताया तो शरीयत नहीं है तो इस तरीके से मोहब्बत करना जायज नहीं है। जरा इसका भी तो जायजा हमें लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दीन इस्लाम सहाबा के सामने पेश करते हुए कहते हैं इन्नहु लैसा मिन शैइन, कोई चीज ऐसी नहीं है युकर्रिबुकुम इलल जन्नह व युबाइदुकुम मिनन नार इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही। ऐ मेरे सहाबा सुनो, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, सुन्नत के नाम पर जितनी भी चीजें तुमको जन्नत के करीब ले जाती है, किसके करीब? जन्नत के करीब, और जहन्नम से दूर ले जाती हैं, सारी चीजों का मैंने तुमको हुक्म दिया है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा मैंने रहनुमाई की है, बाकायदा हुक्म दिया है। हुक्म मतलब ये है कि इस्लाम के नाम पर जितनी भी चीजों की जरूरत थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम में, यानी दीन मुकम्मल हो गया है, इस मुकम्मल दीन में जितनी चीजों की जरूरत थी, जो जो चीज जन्नत से करीब ले जाती है और जहन्नम से दूर ले जाती है, सारी चीजों को अल्लाह के नबी ने बता दिया है, हुक्म देकर बता दिया है कि तुम ये करो। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा शैउन कद लैसा शैउन युबाइदुकुम मिनल जन्नति व युकर्रिबुकुम इलन नार इल्ला वक़द नहैतुकुम अन्हु। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितने भी चीजें तुम्हें जहन्नम के करीब ले जाती है और जन्नत से दूर ले जाती है, उन तमाम चीजों से मैंने तुमको मना फरमाया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि मेरी सुन्नत पर अमल करना मुझसे मोहब्बत है, तो सुन्नत को मुकम्मल तौर पर पहुंचाया भी है। एक भी सुन्नत नहीं छोड़ी है नबी ने, एक भी शरीयत के काम को नहीं छोड़ा है, एक भी दीन के काम को नहीं छोड़ा, इस्लाम के काम को नहीं छोड़ा है। यानी इबादत के नाम पर, नेकी के नाम पर जितनी चीजों की जरूरत थी सब कुछ पहुंचा दिया। यहाँ तक कि जब नबी ने ये कहा सारी चीजें मैंने तुम तक पहुंचा दिया है, तो सहाबाए किराम बिलखुसूस सलमान फारसी का यहूदी मजाक उड़ाया करते थे, तुम्हारा नबी हर चीज बताता है तुमको, हर चीज तुम तक पहुंचाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे नबी के पास हया ही नहीं है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हया नहीं है। सलमान फारसी ने कहा कि भाई ऐसी कौन सी बात है तुम मुझे बताने जा रहे हो जिसके बारे में ऐसा जिक्र तुम कर रहे हो? तो कहने लगे तुम्हारा नबी आला काम तो बताता ठीक है, ऊंचा काम, वो काम करो, ये काम करो, ये मत करो, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्या है भाई, ये भी दीन है, ये भी सुन्नत है, ये भी शरीयत है, ये भी अदब है क्या कि मर्द औरतों की तरह कज़ाए हाजत करे। शर्म दिला देते मर्द औरतों की तरह, जिस तरीके से तुम्हारे मर्द बैठ के कपड़े सीमेंट के वगैरह, मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दुनिया वालों से दुनिया के लिए भी लड़ना है, अभी ऐलान करूंगा, लेकिन ये लड़ाई हमारी आखिरत की है ना, इसमें भी तो लड़ाई करना है मोहब्बत से, हुज्जत के साथ, तरीके के साथ, हिकमत के साथ। तो सलमान फारसी ने कहा इसमें शर्म की क्या बात है? अगर हमारे नबी ने ये अदब भी शरीयत के नाम पर बताया है तो हमें फख्र है कि नबी ने ये भी नहीं छुपाया, सुभान अल्लाह, इसे भी नहीं छुपाया है। जब नबी ने इसको तक नहीं छुपाया तो क्या इतनी बड़ी चीज नबी ने छुपाई है कि मेरे ईद मिलादुन नबी मेरे नाम के बनाओ, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने कहा मुकम्मल है और नबी छुपा कर ले गए। कज़ाए हाजत के आदाब तक बताए और ये नहीं बताइए, अगर नहीं बताए होंगे तो क्या बात मालूम होती है इससे? ये दीन नहीं था, जरूरत नहीं थी, ये इस्लाम नहीं था, ये मोहब्बत के नाम पर चलने वाली बाद में एक बिदात थी, जो कि वो भी सही मोहब्बत नहीं थी। पता क्या चला? सहाबा किराम को फख्र था कि दीन के नाम पर सब कुछ पहुंचा दिया गया है, सब कुछ, आला से आला काम भी, यहाँ तक के कज़ाए हाजत के आदाब भी पहुंचा दिए गए। जब नबी ने कहा मैं सब कुछ पहुंचा दिया हूँ, तो नबी के कहे हुए बात पर भरोसा करते हुए हमें उसी चीज पर अमल करना चाहिए जो नबी से हम तक पहुंचा है, चाहे वो इबादत के नाम पर हो, चाहे वो मोहब्बत के नाम पर हो, कुछ भी हो। अगर हमें कामयाब होना है वही काम हम करेंगे जो नबी ने हम तक पहुंचाया, वही अमल हम करेंगे जो नबी के जरिए हम तक पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो हम उसे दीन नहीं बोल सकते, मोहब्बत का नाम देकर उसे जायज भी नहीं समझ सकते। क्यों? इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर किसी ने कोई नया काम शुरू किया, मनिब्तदअ फिल इस्लामी बिदअतन यराहा हसनतन फज़न्नहु अन्नहु खान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रिसालतिही, कि जब दीन मुकम्मल हो गया है तो मुकम्मल होने के बावजूद कोई अपनी तरफ से कुछ भी दीन के नाम पर नया काम शुरू करे और ये सोचे कि अच्छा है। और आज देखिए कितना लोग सोचते हैं ईद मिलादुन नबी का काम कितना अच्छा है, नहीं करने वालों को काफिर तक बोल देते हैं, डरते नहीं है इसमें, गुस्ताखे रसूल तक बोल देते हैं। खैर गुस्ताखे रसूल कौन है, कौन सी कैटेगरी आती है हमको भी मालूम है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख तक बना दिया जाता है।
इमाम मालिक ने क्या कहा कि दीन के नाम पर, जबकि दीन मुकम्मल हो चुका है, कोई अगर नया काम शुरू करे और ये सोचे कि ये अच्छा काम है, उसने गुमान किया है, उसने ये समझ लिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत के काम में खयानत की है, यानी मुकम्मल रिसालत को नहीं पहुंचाया है। अल्लाह ने फरमाया मुकम्मल हो गया और रसूल ने ये काम नहीं बताया। बताया है कहीं? बताइए, मेरे नाम की मीलाद बनाओ, एक भी हदीस बताइए। मोहब्बत के नाम पर तक बता दीजिए, एक भी बात। जबकि ऐसा होना चाहिए, हो रहा ये है, एक हदीस बताइए जिसमें नबी ने कहा हो कि मेरा मीलाद मत बनाओ। भाई इबादत और दीन में करने की दलील होना है या नहीं करने की दलील होना है? करने की दलील होना है। नबी ने कहा होना चाहिए कि तुम ये काम करो, और अगर नहीं करने की दलील शरीयत के नाम पर पूछी जाएगी तो हमारे नौजवान तो बात बात पर पूछेंगे, बताइए आंख मारने से कहा नबी ने मना फरमाया? बताइए कहा नबी ने ये काम मना फरमाया? एक भी हदीस में तो हमको मिलता नहीं है। नहीं, बल्कि दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर, इबादत के नाम पर, नेकी के नाम पर जो काम होता है उसके करने की दलील पूछी जानी चाहिए, नहीं करने की दलील नहीं। पता क्या चला? दीन मुकम्मल हो गया है। और दूसरी बात क्या मालूम है? मोहब्बत करना दीन में शामिल है, और जब दीन में शामिल है तो मुकम्मल दीन नबी ने पहुंचाया है। सहाबा से गवाही भी ली है कि सब कुछ मैंने पहुंचा दिया है। जब सब कुछ दीन के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर किए जाने वाले अमाल को पहुंचा दिया है, अब अगर कोई उसके अलावा करता है तो उसका क्या हुक्म है? आखिरी बात, उसका हुक्म यही है कि वो दीन नहीं है। कितना भी ढंढोरा पीटे, कितना भी ऐलान करे, कितनी भी हुज्जतबाजी करे, कुछ भी करे, वो दीन नहीं हो सकता। क्यों? जिस नबी ने ये कहा मैंने सब कुछ पहुंचा दिया है, उसी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये भी कहा है कि सुनो, जब मैंने सब कुछ पहुंचा दिया है तो अटेंशन प्लीज, उसी पर अमल करो, उतने ही पर अमल करो। मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, उसके अलावा इधर उधर की बात ना करो, वरना तुम करोगे लेकिन वो मरदूद हो जाएगा, उसे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। दूसरी जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि जिसने ऐसा काम किया जो हमारे बताए हुए दीन में नहीं है तो अल्लाह उसे रद्द कर देगा, कबूल नहीं करेगा। उसी नबी ने कहा दीन को मुकम्मल मैंने पहुंचा दिया है। उसी नबी ने कहा कि दीन के अलावा दूसरे काम को मत करो, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। लेकिन हमारा तुरफा तमाशा ये है कि जो दीन के नाम पर बता दिया गया है उसको तो नहीं करते हैं, और जो दीन है ही नहीं है उसे धड़ल्ले से करते हैं, जोश और जज्बे के साथ करते हैं। एक बात मैं बताऊं, बात तो खत्म करते करते, वो ये कि इसमें कुछ संजीदा लोग शामिल होते तो हैं ही, कुछ पॉलिटिशियंस भी शामिल हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं कि जिनका पावर या जिनकी ताकत माशरे में जरा बढ़कर है। अगर ये चीज बिदअत के नाम पर, खुराफात के नाम पर दबने ही वाली होती है, लेकिन इन लोगों की वजह से वो दब नहीं पाती। उनका पावर, उनकी ताकत या उनकी जो है कैसी मोहब्बत है वो तो हम जानते हैं। मोहब्बत के नाम पर, रियाया के और साथ के नाम पर, मैं तुम्हारे साथ हो, वहां भी हो तो यहाँ भी हो, हर जगह तुम्हारे साथ हो, तुम करो, खर्चे की जरूरत है वो भी मिलेगा। देखिए एक ऐसी बिदअत जो दीन नहीं है, इसमें हर इंसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मैं पूछता हूँ कि हम आज के दौर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 12 रबीउल अव्वल तो और बहुत दूर के बाद है, रबीउल अव्वल का महीना आते ही शुरू हो जाते हैं क्या क्या बनाना। ताजिए तो खैर वो हमारे बाजू वाले बनाते हैं, बाजू वाले का मतलब काफी नहीं है, और दूसरी बात इसमें राय नहीं है, क्या क्या तैयारियां नहीं की जाती हैं। यही तैयारी उस शख्स ने क्यों नहीं की जिस शख्स की मोहब्बत को अव्वल दर्जे की मोहब्बत में बिठाया जा सकता है। उस शख्स के ने क्यों नहीं के जिस शख्स के हाथ को पकड़कर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ शख्स अगर तेरी जान से ज्यादा तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता है तो तेरा ईमान तक मुकम्मल नहीं हो सकता। उस शख्स से क्यों नहीं की जिस शख्स ने इतनी मोहब्बत की है
کہ अपने पूरे माल को लुटा दिया। मेरी मुराद अव्वल शख्स हजरत अबू बकर है, दुव्वम शख्स हजरत उमर है, सुव्वम शख्स हजरत उस्मान गनी जुल्नूरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर मोहब्बत है। आज हम इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, बिदअत है पूरा बता दिया मैं, लेकिन मोहब्बत के नाम पर अगर मनाना सही होता तो उस शख्स ने क्यों नहीं मनाए जिसकी मोहब्बत हम सबकी मोहब्बत पर भारी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हमारी मोहब्बत उनकी मोहब्बत का मुकाबला कर सकती है बोला? बताइए। गारे सौर में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन छुपे थे, गार के दहाने पर जब पहुंचे, हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल जान जाती है तो मेरी चली जाए, लेकिन गार में पहले मैं घुसूंगा, जाकर पाकी सफाई करूंगा, देखूंगा कोई मुझे जानवर कीड़ा मकोड़ा है क्या। गए, पाक साफ किए, पैर घुसाया, सारी बातें हमको मालूम है। इतनी शदीद मोहब्बत, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मनाई। मैं कहूंगा उनकी जुबान से, क्या हजरत अबू बकर की इतनी शदीद मोहब्बत जाली थी भला, झूठी थी? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि इतनी मोहब्बत करने वाले ईद मिलादुन नबी नहीं मनाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका एक मर्तबा हाथ पकड़े हुए हैं। जरा बताइए, अभी पकड़ के बता भी देता हूँ। यहाँ ऐसे नहीं, ऐसा पकड़े हुए हैं, मोहब्बत से पकड़े हुए हैं। चलिए, मोहब्बत से पकड़े हुए हैं तो पहला ये नुक्ता पेश करो, बाद में आगे बढ़ता हूँ। ऐसा काम करो कि तुम्हें मोहब्बत की दलील देने की जरूरत ना पड़े, रसूल खुद तुमको पकड़े। हम ऐसा काम कर रहे हैं, पकड़ने की बात तो दूर की है, मैदान महशर में जब हम जाएंगे, हौज़े कौसर पर देखते ही नबी कहेंगे मीलाद मनाने वाले हैं ये, निकाल दो इनको। हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। भाई कौन किसका हाथ पकड़ता बताइए जरा। हम अपने मोहब्बत की दलील दे रहे, वो भी तो मोहब्बत करे ना। हजरत उमर से मोहब्बत करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा काम हम करें कि नबी हमको पकड़े, मैदान महशर में हम उनके करीब हो, उनके दस्ते मुबारक से हम जामे कौसर नोश फरमाए। हम तो ऐसा काम कर रहे हैं, पकड़ने की तो बात दूर है, सुहकन लिमन गैर आबादी का लफ्ज नबी अदा कर रहे हैं कि करो इनको दूर। मेरे नाम का क्या करते थे जबकि दिन नहीं था। अलगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल आपका हाथ पकड़े हुए हैं। सही बुखारी किताबुल ईमान की रिवायत है, आप उठाकर देखिए, पहले सही बुखारी के पहले ही पारे में ये हदीस मौजूद है। कहते हैं हजरत उमर, मोहब्बत से जब कोई बड़ा आदमी छोटे का हाथ पकड़ता है तो दिल की बात बाहर आ जाती है। उस्ताद अगर शागिर्द का हाथ पकड़ता है, शागिर्द खुशी से उस्ताद को 2 बात बोल देता है जो आमतौर पर नहीं बोलता। जब नबी मोहब्बत से उमर का हाथ पकड़े हुए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ा, तो उमर कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या बताऊं कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, हर शय आपके सामने एक है, लेकिन मेरी जान जो है ना, इल्ला नफ्सी, मेरी जान जो है ना, ऐसा लगता है आपसे ज्यादा मुझे महबूब है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ए उमर सुनो, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कि उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम तुम्हारे नफ्स से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लग जाओ। अल्लाह अकबर, इतनी ज्यादा मोहब्बत कि जान से ज्यादा। हजरत उमर कांप गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम अब तो मैं मेरी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल आन या उमर। इमाम मालिक ने इसकी भी तफसीर की है, कई शारिही ने हदीस में की है। अल आन का मतलब है अय उमर, आज तक तुम्हारा ईमान जैसा था, लेकिन मुकम्मल आज हुआ है। तुम्हारे ईमान की तकमील आज हुई है, तुम्हारे मुकम्मल दिल में ईमान आज बस चुका है, अब तक तो अधूरा था। इतनी शदीद मोहब्बत करने वाले उमर कि जान से ज्यादा आपको चाहने लग जाए, और उन्होंने नहीं किया अल्लाह अकबर। तो मोहब्बत के नाम पर मनाई जाती, पहले तो दलील नहीं, और जब दलील पूछी जाती है तो मोहब्बत के नाम पर। हम तो कहते हैं मोहब्बत भी तो इस्लाम है, लेकिन फिर भी मोहब्बत के नाम पर इन्होंने क्यों नहीं मनाई। तीसरे शख्स कौन? जुल्नूरैन, उस्मान जुल्नूरैन। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए 8 मरतबा जिस शख्स को जन्नत की खुशखबरी देते एक ही मेंबर पर एक ही वक्त में, ये कितनी मोहब्बत करते हैं। कहते हैं
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया जंग तबूक के मौके पर कि जंग तबूक को सामान की जरूरत है, सलाह की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है, उस वक्त जब हजरत उस्मान गनी अपने साजो सामान को समेट रहे थे मुल्क शाम जाने के लिए, ताजिर थे, बड़े ताजिर, कामयाब ताजिर, जब कान में आवाज पहुंची सामान छोड़िए, जिन जानवरों पर सामान लदा हुआ था वो तमाम का तमाम नबी के सामने लाकर रख दिए। कहने लगे अल्लाह के रसूल छोटा सा नजराना कबूल कीजिए, जंग की तैयारी कीजिए। इतनी शदीद मोहब्बत करने वाले नहीं मनाए भाई, वो नहीं मनाया तो क्या हुआ, आज तक सऊदी में नहीं मनाया जाता है, एक गली में एक हरा झंडा नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता बताइए? जहां से इस्लाम शुरू हुआ वही है सब कुछ काम, क्यों नहीं होता है? दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम के नाम पर होता अम्मा आयशा बनाती, अनस बिन मालिक बनाते, हजरत उमर, अबू बकर, उस्मान, अली बनाते, अशरे मुबश्शरा बनाते, तमाम अव्वलीन साबिकीन सहाबा किराम बनाते, मुहाजिरीन बनाते, अंसार बनाते, वो 1400 सहाबा किराम जो सुलह हुदैबिया के मौके पर आपके हाथ पर बैठ की, वो सहाबा बनाते, वो 1,24,000 सहाबा किराम जो हज्जतुल विदा के मौके पर आपके साथ उन्होंने हज किया, वो सहाबा बनाते। कहीं भी नहीं है दलील, किसी ने नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है बताइए? क्योंकि उनको नबी की ये बात मालूम थी। कौन सी बात? मन अहब्ब सुन्नती, जो मेरी सुन्नत को अपनाता है, यानी सुन्नत से मुराद इस्लाम को, मैंने जो दिया है ना इस्लाम के नाम पर, उसे जो अपनाता है वो मुझसे मोहब्बत करने वाला। ये बात उनको मालूम थी तो उन्होंने उसी को अपनाया, उसी को नबी के मोहब्बत की दलील उन्होंने समझी है। लेकिन आज देखिए ना, अल्लाह की पनाह, नबी ने कहा था कि फजर की नमाज के पहले की 2 रकात सुन्नतें मुझे इतनी महबूब हैं कि दीगर सारी सलाते ततव्वु में छोड़ तो सकता हूँ, लेकिन सफर में भी अगर हूँ तो फजर से पहले की 2 रकात सुन्नतें, ये पसंद, ये सुन्नत, ये शरीयत, ये इस्लाम। ईद मिलादुन नबी मनाने वाले हमारे नादान नौजवान मुसलमानों को बताइए, करते हैं? ये भी तो नबी को पसंद थी बात, जो बात पसंद थी तो हम नहीं करते हैं, जो बात नहीं पसंद थी या नहीं बताइए वो करते हैं। पता ये चला ईद मिलादुन नबी जो मोहब्बत के नाम पर मनाई जाती है, ये दवा भी सरासर झूठा है, क्योंकि मोहब्बत दीन है और कैसा करना उसका तरीका भी मौजूद है। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें मुकम्मल इस्लाम पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमा, और जो दीन है उसे अपनाने की तौफीक अता फरमा। जो दीन नहीं है जितना भी मशहूर हो, अल्लाह हमें उससे इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमा।